ટેકનોલોજી. તો ફર્સ્ટ યુનિટ લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર મેં તમને કીધું હતું કે યુનિટ નંબર 1 થી લઈને યુનિટ નંબર 4 સુધી જે છે એ હું કવર કરીશ. અને એમાં ફર્સ્ટ યુનિટ જે છે એ ઇન્ટ્રોડક્શન જે છે. જનરલી યુનિટ 1 જે છે ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ મટીરિયલ ટેકનોલોજી, ડિફરન્ટ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ, એ આની અંદર આપણે સમજીશું. અને એનું ક્લાસિફિકેશન કયા કયા સ્ટેજમાં થાય છે તે આપણે સમજીશું. બીજી વસ્તુ છે કે મટીરિયલ ટેકનોલોજી સબ્જેક્ટ જે છે આની રિક્વાયરમેન્ટ કેમ છે, એ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા છે. અને એઝ અ એન્જિનિયર તરીકે આપણે આ વસ્તુ સમજવી ઘણી જરૂરી છે. સો મટીરિયલ ટેકનોલોજી યુનિટ 1 ઇન્ટ્રોડક્શનથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ થિંગ જે છે કે મટીરિયલ ટેકનોલોજી જે વર્ડ જે છે, તો મટીરિયલ એટલે શું એ પહેલાં આપણે સમજી લઈએ, અથવા ટર્મ મટીરિયલ કેવી રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે. એઝ યુઝ્યુઅલી મટીરિયલ જે છે એ ડિફાઇન એઝ અ સબસ્ટન્સ. એક સબસ્ટન્સ મીન્સ કે અહીંયા ફેઝ ઓફ મટીરિયલ, આઈધર ઇટ ઇઝ સોલિડ ફોર્મ, આઈધર ઇટ ઇઝ લિક્વિડ ફોર્મ ઓર ગેસિયસ ફોર્મ. જનરલી ફેઝ જે છે આપણને 4 ફેઝ જે છે એ તો ખબર છે કે એક સોલિડ ફોર્મમાં હોય, એક લિક્વિડ ફોર્મમાં હોઈ શકે, અથવા ગેસ ફોર્મ હોય. અને સ્ટેટ ઓફ મેટર જે 3 સિવાય જે છે અધર 4 સ્ટેટ ઓફ મેટર જે છે એને પ્લાઝ્મા તરીકે આપણે ડિફાઇન કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા મટીરિયલ જે છે એને જે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે એઝ અ સબસ્ટન્સ. અને એમાં જનરલી મટીરિયલ જે છે સોલિડ ફોર્મની અંદર મેજોરિટી મટીરિયલ જે છે એનું જે ઇનિશિયલ અથવા રો મટીરિયલ ફોર્મમાં જે આપણને મળે છે એ જનરલી આપણને સોલિડ ફોર્મની અંદર મળે છે. પણ એવું જરૂરી નથી કે દરેક મટીરિયલ જે છે એને આપણે સોલિડ તરીકે, રો મટીરિયલ છે એને જ આપણે મટીરિયલ તરીકે કન્સિડર કરીએ. ઘણા એવા લિક્વિડ ફેઝના પણ મટીરિયલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સલ્ફ્યુરિક એસિડ જે છે એ જે છે એને પણ એક ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે એ એઝ અ રો મટીરિયલ તરીકે પણ હોય છે. તો એ સલ્ફ્યુરિક એસિડ જે છે એ પણ યુઝ કરવામાં આવે છે. જનરલી એનું ફેઝ જે છે લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય છે. તો અહીંયા ડિફરન્ટ ટાઈપના ફેઝિસ જે આવે એમાં મેજોરિટી સોલિડ ફોર્મમાં આવે, પણ અમુક કોઈ રેર કેસીસ જે છે એની અંદર લિક્વિડ ફોર્મમાં પણ મટીરિયલ હોઈ શકે. એના સિવાય થર્ડ ફેઝ જે છે ગેસીસ છે. ગેસીસના અંદર સમજવા જઈએ તો વોટરને જ્યારે આપણે હીટ સપ્લાય કરીએ અને ડ્યુ ટુ દેટ હીટ સમ અમાઉન્ટ ઓફ gases are generated which we called as a steam. Okay, તો એ જે સ્ટીમ જે છે it also as a one of the substance. તો ઘણી પ્રોડક્ટ માટે સ્ટીમ જે છે એ એઝ અ મટીરિયલ તરીકે પણ વર્ક કરે છે. તો એવું જરૂરી નથી કે ઓનલી સોલિડ જે છે એ જ એઝ અ કન્સિડર એઝ અ મટીરિયલ, but also liquid or gaseous form also consider as a material. So most of on a solid, but other condensed phase can also be considered. So these all phases of material which deal with certain applications. તો અહીંયા મટીરિયલ જે છે એને ડિફાઇન જે આપણે કરીએ છીએ કે એક સબસ્ટન્સ છે જે જનરલી સોલિડ ફોર્મમાં આપણે કન્સિડર કરેલું છે અને એના પર ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસ કરીને આપણે એક આઉટપુટ પ્રોડક્ટ તરીકે એને બનાવીએ છીએ. ક્લિયર? ત્યાર પછી સેકન્ડ છે કે ટેકનોલોજી. ધ વર્ડ જે મટીરિયલ ટેકનોલોજી જે છે તો એની અંદર ટેકનોલોજી એટલે ડિફાઇન એક રીતે કરવામાં આવે કે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ જે છે કે કોઈ મટીરિયલ આપણે લઈએ છીએ અને એના પર ડિફરન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસનું યુટિલાઇઝેશન કરી આપણે એક આઉટપુટ પ્રોડક્ટ બનાવવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. અહીંયા અથવા જે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ છે એને સમ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવા માંગીએ છીએ, અથવા સોસાયટીની અંદર કોઈ પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો આ રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આપણે એને ઇન્વેન્ટ કરીએ છીએ. એઝ પર કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ છે અથવા સોસાયટીની ડિમાન્ડ છે તો એ પ્રમાણે આપણે ડિફરન્ટ ટેકનિક્સ છે, મેથડ્સ છે, ડિફરન્ટ ટૂલ્સ છે એનો યુઝ કરીને આપણે નવું મટીરિયલ જે છે એને ઇન્વેન્ટ કરીએ છીએ. સો મટીરિયલ ટેકનોલોજી જે છે, મટીરિયલ અને ટેકનોલોજી આ બે જે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા રહેલા છે કોઈ પણ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ માટે. આપણે સમજવા જઈએ તો આપણી અરાઉન્ડ ઘણી બધી એવી મટીરિયલ છે કે જે એઝ અ મટીરિયલ ટેકનોલોજી અથવા મટીરિયલ સાયન્સમાંથી આપણને એ ડેવલપ કરે. અહીંયા ઘણા વખત આ સબ્જેક્ટને મટીરિયલ સાયન્સ તરીકે પણ ડિફાઇન કરેલો છે અને ઘણી વખત એને મટીરિયલ ટેકનોલોજી તરીકે પણ ડિફાઇન કરેલો છે. તો અહીંયા સાયન્સ શું છે એ તમને ખ્યાલ છે અને ટેકનોલોજી છે એ તમને ખ્યાલ છે કે ટેકનોલોજીથી સમ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, સમ
યુઝફુલ પ્રોડક્ટને પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન્સની અંદર આપણે બનાવવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. તો અહીંયા મટીરિયલ ટેકનોલોજી છે તો એની માટે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના આપણી પાસે જે છે મટીરિયલ જે છે સરાઉન્ડિંગ આપણી સોસાયટીની અંદર અવેલેબલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાં આપણે જે ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ છે એ આપણું ડિવાઇસ છે, તો એનાથી આપણે એક્સેસ કરીએ તો એ પણ એક ટાઈપનું મટીરિયલ છે જેની અંદર પણ ડિફરન્ટ ટાઈપના મટીરિયલનું કમ્પોઝિશન પણ છે કે જેની ઉપર જે ગ્લાસ જે છે એ એક અલગ મટીરિયલ છે, એની પ્લાસ્ટિકની જે બોડી જે છે એ અલગ છે, એની અંદર જે એલ્યુમિનિયમની ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું હોય છે જેના ઉપર ડિફરન્ટ ટાઈપની પીએલસી સર્કિટ બનાવીને એના ઉપરથી જે પ્રોગ્રામિંગ કરવા માટેને સેમિકન્ડક્ટર કે જે કોઇલ્સ જે છે એ બનાવેલી હોય. તો આ જે આપણું મોબાઈલ એક ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ છે એ પણ ડિફરન્ટ ટાઈપના મટીરિયલનું કોમ્બિનેશન છે. એના સિવાય આપણા ઘરે જેટલા પણ વાસણ જોઈએ તો આઈધર એ એલ્યુમિનિયમનું કોઈ વેસલ હોય અથવા એ સ્ટીલનું વેસલ બી હોઈ શકે અથવા એની અંદર કોપરનું પણ વેસલ હોઈ શકે. ઇવન તમે તમારું રેફ્રિજરેટર બી જુઓ તો રેફ્રિજરેટરની પાછળની તરફ એક જાળી જેવી હોય છે જે જનરલી ફિન્સ તરીકે ડિફાઇન કરે એ કોપરની ટ્યુબ હોય છે કે જેની મદદથી કુલિંગ કન્ડિશન જે છે એ તમને આપે. ઇવન એસીની અંદર પણ જે કોપરની ટ્યુબ હોય, ઘણી વખત તમે ન્યૂઝપેપર જે આવે તો એની અંદર જોશો કે 100% કોપર કોઇલ અવેલેબલ ઇન ધ એસી. ઓકે, સો ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મટીરિયલ જે છે આપણી અરાઉન્ડ જે છે એ અવેલેબલ છે અને એની ડિફરન્ટ એપ્લિકેશન છે, ડિફરન્ટ ફંક્શન એ પરફોર્મ કરી શકે છે. ઓકે, તો આના સિવાય ડિફરન્ટ સેક્ટર પણ સમજવા જઈએ તો ડિફેન્સ સેક્ટરની અંદર પણ મિસાઇલ્સ બનાવે છે, એરસ્પેસ જે છે એની અંદર યુઝ કરીએ છીએ, ઇવન મેડિસિન જે છે એની અંદર પણ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ફૂડની અંદર પણ ડિફરન્ટ ટાઈપના મટીરિયલ જે છે એને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે અથવા એને કન્ટેનર તરીકે તો આપણે વેરિયસ વે અને ટેકનિક જે છે એની મદદથી ડિફરન્ટ ટાઈપના મટીરિયલથી કોમ્પોનન્ટ આપણે બનાવેલા છે અને એનું આપણે યુટિલાઇઝેશન કરીએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ સમ બ્રીફ introduction about the material technology. Then second is हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. जो मटेरियल हम बोलते हैं कि ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल है तो ये मटेरियल बेसिकली किस कहाँ से ऐसे आए हैं या कब से हम मटेरियल एज अ ह्यूमन जो हम कब से यूज कर रहे हैं. तो बेसिकली देखेंगे material are so important in the development of human civilization. That's why it divided on the basis of material development from stone age to space or electronic or digital age. अभी जो सिनेरियो अभी चल रहा है वो एक्चुअली स्पेस एज भी बोल सकते हैं या इसको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एज में हम ट्रांसफर हो रहे हैं एट प्रेजेंटली. सो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर समझते हैं तो स्टोन एज से स्टार्ट हुआ था. आदि मानव जो हम बोलते हैं उस टाइम पे जो स्टोन है उसका यूटिलाइजेशन करके काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट या औजार बनाए हैं. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि उसकी मदद से वो अपने सेल्फ जो डिफेंस है वो सिस्टम उसने रेडी की थी. कुछ उसको शिकार करना है उसके लिए कुछ कभी कुछ काटना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड टूल दे आर यूज फ्रॉम द स्टोन एज. तो हमने जब शुरुआत ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसने मटेरियल जो इनिशियल बेस पे हमने जो स्टोन पे से उसकी शुरुआत की थी. दूसरी एक चीज़ है कि स्टोन जो है उसका हमने यूज़ करके जो है इनिशियल बेस पे हमने जो है उसको स्ट्राइक करके फायर भी डेवलप किया. तो वहाँ पे भी हमने शुरुआत की है ह्यूमन सिविलाइजेशन में. दूसरी एक चीज़ है कि उसको एक फॉर्मेशन में लाके हमने एक व्हील डेवलप किया. तो चक्र जो बोलते हैं उसकी हमने शुरुआत की. तो दिस इज द इनिशियल स्टेज वेयर द स्टोन एज वेयर द मटेरियल वी डिफाइन एज अ स्टोन. ओके, सो देन आफ्टर द सेकंड इज ब्रॉन्ज एज जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट और टूल्स है वो स्टोन जैसे ही कुछ डिज़ाइन में बनाए गए या उसके अलावा भी कुछ मॉडिफिकेशन जो उसमें की गए. और ये जो है सिर्फ ब्रॉन्ज एज में काफ़ी ऐसे डेवलपमेंट हुए. काफ़ी सारे ऐसे हम इजिप्ट की मूवी इजिप्ट साइड की कुछ मूवियाँ हैं या कुछ पेरिस तरफ की है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जहाँ पे ब्रॉन्ज एज का डिफाइन निर्देश किया है या कुछ ऐसे म्यूजियम में भी ऐसे इक्विपमेंट मिले हैं. ओके, सो दिस इज ब्रॉन्ज एज. उसके बाद जो एज आए वो आयन एज है, यानी जो हम बोलते हैं
कि उसकी मदद से काफ़ी सारे वॉर इक्विपमेंट जो है वो हमने बनाए। जनरली माइनिंग और को माइनिंग यानी जो खनिज जो मिलता है उसको हमने फर्दर प्रोसेस किया और डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो बनाए ये वॉर के लिए तो बनाए, उसके अलावा हमने कुछ स्टोरेज के लिए और या कंटेनर के फॉर्म में भी हमने उसको बनाए। और जो स्टोन एज में जो व्हील था उसको फर्दर मॉडिफिकेशन किया और आयरन के जो व्हील है जो वो हमने बना दिए। सो दिस इज द थर्ड फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। देन आफ्टर दिस इज अ स्टील एज। ये करीबन 1850 के अराउंड 1850 के अराउंड ये जो है वो स्टील एज जो स्टार्ट हुआ। और ये जो एज स्टार्ट हुआ वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे रिवोल्यूशन आए और वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को वहाँ से मिला। उसके बाद एट प्रेजेंटली हम देखते हैं कि स्पेस एज है, काफ़ी सारे स्पेस सैटेलाइट्स उपग्रह जो है वो स्पेस में हम प्लेस कर रहे हैं। सो दिस आर द फेस और ये ऐसी एरिया है जहाँ पे हमने कुछ मटेरियल को इम्प्रूवमेंट किया है और हम स्पेस में काफ़ी अचीवमेंट करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट जो है हमारे यहाँ पे वो जो है वो डिजिटल एज। ओके, सो देयर इज सम फ्यूचर स्कोप इन दिस डिजिटल एज। सो ये जो सब है सब फ्रॉम स्टोन एज टू डिजिटल एज और इलेक्ट्रिकल एज और स्पेस एज ये हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन दिखाया। तो हम सभी सिविलाइजेशन में देखेंगे तो ह्यूमन ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मटेरियल जो है उसको हमने यूज़ किया है और उसकी मदद से कुछ ना कुछ यूजेबल प्रोडक्ट जो है वो हमने बनाए हैं। क्लियर? तो दिस इज अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फॉर मटेरियल डेवलपमेंट इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो हमने जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज जो देखा स्टोन एज में, सो वेयर द पीपल यूज ओनली नेचुरल मटेरियल, वहाँ पे जो स्टोन है उसका यूज करते हैं, वाटर है उसका यूज करते हैं, उसके अलावा जो है क्ले यानी मिट्टी है, मिट्टी का यूज करके काफ़ी सारे ऐसे कंटेनर उस टाइम पे भी बनाए और उसमें वाटर को स्टोर करते हैं या कुछ अपने पास जो अनाज है उसको भी स्टोर करते थे। तो देर इज नेचुरल रिसोर्सेज दे कैन यूज ऑल्सो, दे कैन यूज अ स्कीम ऑफ एनिमल फॉर प्रोटेक्टिंग शेल्टर और कुछ क्लोथ्स उसमें से बनाए। सो दिस इज द डिफरेंट एरिया इन द स्टोन एज वेयर दे यूज स्टोन, क्ले, स्कीन एंड द वुड। जो वुड है उसके काफ़ी सारे ऐसे औजार बनाए या उसकी वजह से उसने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसको उसने घर जैसा एक स्ट्रक्चर भी बनाया दिया। तो दीज आर द डिफरेंट यूज ऑफ नेचुरल मटेरियल और उसमें से उसने बताया, हमने बताया जिस तरह से वेपन, इंस्ट्रूमेंट और शेल्टर उसने बनाए। देन आफ्टर सेकंड जो एज है वो ब्रोंज एज है। सो हियर जो ब्रोंज एज है उसमें मेजोरिटी जो मटेरियल जो फाउंड किया गया है वो मेजोरिटी फाउंड किया गया है कॉपर। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कॉपर के स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए, काफ़ी सारे ऐसे बर्तन भी है जो इसमें कॉपर का यूज़ किया हुआ है। सो जनरली जो ये ब्रॉन्ज एज जो है वो जनरली स्टार्टेड अराउंड दी 3000 BC। देन आफ्टर द थर्ड इज आयरन एज। द आयरन एज इज दैट वेयर द जो आयरन जो हमको मिला वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन स्टोन और ब्रोंज की हमने। और उसका एक एडवांटेज है कि उसकी वजह से काफ़ी सारे वॉर के लिए जो इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट है या वेपन्स है या कुछ ऐसे यूजफुल थिंग्स या कंटेनर जो हमने बनाए वो अराउंड 1200 BC के अराउंड हमने बनाए। तो जनरली उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट फेज में आया तो वो है ज़्यादातर टूल्स और यूटेंसिल्स जो है हमने आयरन एज में डेवलप किए। सो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ आयरन एज। देन आफ्टर नेक्स्ट इज स्टील एज। जो स्टील एज है वो सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया पहले ही कि एक रिवोल्यूशन लाया है। तो द डिस्कवरी ऑफ चीप प्रोसेस टू मेक स्टील अराउंड 1850 AD। और जनरली स्टील एज ब्रॉट जनरली रेड रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो सबसे पहले जो डेवलप की गई थी और जिसका मैक्सिमम स्टील एज में यूज़ किया, स्टील का काफ़ी सारा या बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ किया वो रेड डेवलपमेंट में हुआ।
उसके बाद काफ़ी सारे स्टील के इंस्ट्रूमेंट भी बना है, और उसके बाद इंडस्ट्री जो है रिवोल्यूशन आया, यानी पहले जो इतनी बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन जो इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन जो आया वो बेसिकली स्टील एज, और एट प्रेजेंट भी स्टील एज है काफ़ी सारा इफेक्टिव है। और हम काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट जो है अभी भी स्टील एज की, और स्टील एज में जो डेवलपमेंट हुआ उसका अभी भी हम वही मेथड या वही तरीके से हम कुछ अभी भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो हुआ है, लेकिन हम फिर भी स्टील एज को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देन आफ्टर द स्पेस एज, so as usual the many technology development which resulting in strong and light material। तो बेसिकली स्पेस एज की रिक्वायरमेंट तब हुई कि जब हमारे पास स्टील एज और आयन एज था, लेकिन वहाँ पे जो हमको मटेरियल मिलता है तो उसका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसकी हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी वो भी एक बड़ा पैमाना है कि स्पेस के अंदर, क्योंकि वो एक लेयर टू डिफरेंट लेयर में स्पेस में जब एंटर होता है तब उसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी, उसके ऊपर जो हायर टेम्परेचर जो लगेगा वो डिफर हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो मटेरियल जो हमको स्पेस एज में हमको चाहिए तो बेसिकली वो स्ट्रॉन्गर भी होना चाहिए और लाइटर वेट भी होना जरूरी। तो स्पेस एज की वजह से ही हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी देखते हैं कि काफ़ी सारे कार्स जो है या ऑटोमोबाइल बाइक्स सेक्टर में हम बोल सकते हैं, तो उसकी जो पहले जो बाइक या कार्स आती उसकी वेट जो है काफ़ी ज़्यादा थी और एवरेज काफ़ी कम थी, लेकिन अब जो अभी जो व्हीकल आते हैं उसमें जो वेट है तो वो कम कर दिया है, यानी लाइटर मटेरियल जो है हमने डिफाइन कर लिया है और उसकी मदद से एवरेज जो है व्हीकल की जो है काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से हमने स्पेस एज में भी लाइटर मटेरियल एंड स्ट्रॉन्गर मटेरियल वी कैन यूज। और दूसरी चीज़ जो है द स्पेस एज में वो हमने कंपोजिट मटेरियल, काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एक सिमिलर टाइप की है और हम उसको by using the different material or combination of two material, three material और number of material by adding alloying element हम एक composition बनाते हैं, उसकी वजह से मटेरियल की काफ़ी सारे ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होती है। तो उसको बनाने के लिए हमने कंपोजिट मटेरियल भी बना लिया, तो वो कंपोजिट मटेरियल से भी काफ़ी सारा हेल्प मिली है स्पेस एज में। दूसरी जो चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल लाइक सेमीकंडक्टर जो हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाते हैं, और दूसरा है कि हाई टेम्परेचर सिरामिक्स, फॉर एग्जांपल स्पेस शटल जो होती है उसके आउटर लेयर पे जो वॉल जो क्रिएट करते हैं जनरली सिरामिक मटेरियल की होती है जो काफ़ी सारा हीट रेजिस्ट भी कर सकती है। और एट प्रेजेंटली हम अगर देखें कि स्पेस एज में तो काफ़ी सारे ऐसे बायो मटेरियल्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरा जो है नैनो मटेरियल का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो at presently we are using the space age where this is biomaterial and nanomaterial and semiconductor we are presently using। then after the third is electronic age। so ये जो electronic age है generally brought a semiconductor and many varieties of electronic gadgets। for example हम electronic age और space age को कंपेयर करें तो दोनों जनरली सिमिलर एक फेज है कि जहां से हमने शुरुआत की है। हेलो यस सर, अच्छा आवाज सर આવે છે ને? કોઈ ઓકે ઓકે કોઈ અનમ્યુટ કર્યો એટલે જસ્ટ so we can continue now। तो इलेक्ट्रॉनिक एज एंड स्पेस एज दोनों की शुरुआत करीबन एक ही टाइम पे जैसे नज़दीक नज़दीक ही हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एज जो है एट प्रेजेंटली हम देखेंगे तो लास्ट 10 इयर्स बैक हम देखेंगे तो हमारे पास जो मोबाइल थे वो कीपैड वाले थे, वहाँ पे टच स्क्रीन नहीं अवेलेबल था, और दूसरी काफ़ी ऐसी चीज़ें भी थी जो डेवलपमेंट फेज में आ रही थी। तो हियर सम जस्ट डेवलपमेंट इज देयर। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोबाइल है या गैजेट है यानी स्मार्ट वॉच भी अवेलेबल है, उसमें टच स्क्रीन करके ही हम सब एक्सेस कर रहे हैं, पहले कीपैड से हम एक्सेस करते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स वी हैव यूज एंड जो मटेरियल में उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उसका डेवलपमेंट हो चुका है और काफ़ी सारे में कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ इन्वेंशन अभी भी चल रहा है। काफ़ी सारे हम देखेंगे कि और आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो स्मार्ट मटेरियल का भी डेवलपमेंट अभी हो रहा है, जिसके अंदर
जो ग्लास है, ग्लास को बेंड करते हैं और टच करके हमको रिमाइंडर करते हैं एज अ वो ऐसे मोबाइल डिवाइस की तरह वो वर्क करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक एज की हम एट प्रेजेंटली हमारे इंडिया में भी बात करते हैं तो हमारे इंडिया में अभी भी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बल्ब भी मिल रहे हैं। तो वो ऐसा है कि आपको भी शायद मालूम होगा कि वाईफाई कनेक्शन हमारे घर पे है। तो शायद शायद वो फिलिप्स का अवेलेबल है, सिस्का का भी अवेलेबल है, हॉलिनिक्स का भी अवेलेबल है। हॉलिनिक्स इज वन ऑफ द मेजर कंपनी की जो वो मारुति सुजुकी कार है उसके बल्ब बनाती है। सो दिस आर दिस कंपनी। तो उन्होंने क्या है कि अभी मार्केट में स्मार्ट बल्ब भी बनाए हैं जिसके अंदर वाईफाई से हमारे घर पे जो वाईफाई है उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं और मोबाइल में उसकी ऐप डाउनलोड कर लेते। तो आप देखोगे कि उसका कलर चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि कितने टाइम के बाद वो बल्ब, फॉर एग्जांपल रात तक हमको पढ़ना है लेकिन हम बेड में से उठ के वो स्विच ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिक टाइम भी हम वहाँ से मोबाइल डिवाइस में टच करके भी सीधा बल्ब को क्लोज भी कर सकते हैं, उस तरह से फैन को भी ऑपरेट कर दे। सो दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक एज वेयर देर इज अ सम इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। दूसरी जो एक चीज़ है अभी एट प्रेजेंटली इंडिया में काफ़ी सारे कंपनी ने वो इलेक्ट्रिक बल्ब भी यूज बनाए, जैसे कि फिलिप्स ने बनाए वो इन्वर्टर टाइप का जो बल्ब है वो बनाए। तो ये भी हेलोनिक्स ने बनाए, ये फिलिप्स ने बनाए। आप देखोगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे भी वो अवेलेबल है। अराउंड वो 9 वॉट के बल्ब आते, वो जो बल्ब आते हैं करीबन उसकी आप देखोगे कि वो जो बल्ब है अराउंड 9 वॉट का जो है जब हमारे घर पे पावर सप्लाई है तब रन करता है, और जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ होता है उसके बाद जो है वो उसकी जो बैटरी है यानी बल्ब में ही फिट होती है वो 4 घंटे तक वो सप्लाई पावर करती है। और अराउंड जो 9 वॉट की जो उसकी इंटेंसिटी है वो खाली 4% रिडक्शन यानी चार चार दफ़ा 4 वॉट डिक्रीज होकर 5 वॉट के हमको जो है लाइट या सप्लीमेंट करती है। सो दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक एज जहाँ पे हमने कुछ डेवलपमेंट किए हैं और काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट अपकमिंग डेज में हमको देखने को भी मिलेंगे। और स्मार्ट मटेरियल जो है वो भी है, जैसे स्मार्ट मटेरियल की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने शायद अगर काफ़ी सारे यहाँ के बड़ौदा के हैं तो उनको मालूम भी होगा कि एट प्रेजेंटली दिस कोविड-19 सिचुएशन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंजीनियरिंग में वहाँ पे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में एक मास्क का मटेरियल बनाया है। जो मास्क जो है वो N95 जो मास्क मार्केट में मिल रहा है उतने ही वो प्योरिफिकेशन करके देता है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसको हम वॉशेबल भी है और करीबन 50 बार अगर हम वॉश करते हैं उसके बाद उसकी क्वालिटी जो वो रिड्यूस होती है, तो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि वो लाइटर इन वेट भी है और उसके लिए काफ़ी सारे लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द डेवलपमेंट जो सोसाइटी की डिमांड है उसके मुताबिक हम कुछ ना कुछ अपने मटेरियल में कुछ इन्वेंशन करते रहे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन ला रहे। काफ़ी सारे अभी आप कोविड-19 में देखोगे कि जो फेस शील्ड भी मार्केट में अवेलेबल, काफ़ी सारे ट्रैफिक पुलिस है तो उसको भी काफ़ी ऐसे एजेंसी है तो उसने वो दिया है। तो दिस 3D प्रिंटिंग मेथड से वो हमने जो फेस ग्लास शील्ड है वो प्रोडक्ट बनाई है और ट्रांसपेरेंसी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। सो दिस आर दी फेस जहाँ पे ह्यूमन जो है एज पर रिक्वायरमेंट सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ से हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं। दूसरी और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट की मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इन 2000 बीसी में जनरली ब्रोंज की मदद से जो वेपन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है 100 बीसी जो है यहाँ पे जनरली ग्लास जो है एक्चुअली जो ग्लास जो है ये बेसिकली ग्रीस और सीरिया में सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ इन द ईयर 1000 BC। उसके बाद है पोर्सेलिन जो मटेरियल वो चाइना ने डेवलप किया था 700s में। उसके बाद 1519 में ग्लास के लेंस जो बनाए गए वो नीदरलैंड में बने। उसके बाद फर्स्ट टाइम वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज़ किए गए। अराउंड 1839 में जो चार्ल्स गुडियर है, जो गुडियर के टायर आते हैं, तो बेसिकली इन्वेंटेड दी वल्कनाइज रबर। तो ये गुडियर कंपनी है, उसके जो इन्वेंटेड है चार्ल्स गुडियर, तो उन्होंने 1839 में वो डेवलप किया है रबर। So this is some development. Also there is a in 1912 there is a Henry Berkeley invented a stainless steel.
सो स्टेनलेस स्टील जो एज है यहाँ पे, तो अराउंड 1912 के बाद वो जनरली शुरू हुआ। इनिशियली 1815 एडी में वो प्रोडक्ट एक बार मिली थी, लेकिन इतना डेवलपमेंट हमको नहीं दिख रहा था। उसके बाद काफ़ी सारा इन्वेंशन उसमें होना शुरुआत हो गई। उसके बाद जो है, जो ये हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी, इसके अंदर मटेरियल की जो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो मटेरियल स्ट्रक्चर है उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हम डिफाइन कर सके, तो वो जो अराउंड है 1953 में वो इन्वेंट हुआ। उसके बाद जो हम जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है, अभी तो एलईडी चल रही है, लेकिन एलसीडी जो स्क्रीन है वो अराउंड 1968 में इन्वेंटेड हुई। उसके बाद जो करीबन 1980 और 85 के अराउंड करीबन उस टाइम पे एलईडी का इन्वेंशन हुआ, और प्रेजेंटली मार्केट में वो जो है अब सबसे ज़्यादा एलईडी बिक रही है। तो जो प्रोडक्शन है वो एक सी दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि सोलर पैनल यानी रूफटॉप सोलर के जो है वो एक्चुअली जो है उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट आ रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिल रही है, तो काफ़ी सारे वो सोलर पैनल के मटेरियल है उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश है। और इन अपकमिंग डेज में इन विद इन इंडिया वो प्रोडक्ट या जो सोलर की पैनल है वो इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होना काफ़ी टाइम से शुरू भी हो चुकी है। सो देर इज सम डेवलपमेंट इन द डिफरेंट एज ड्यूरिंग द ह्यूमन सिविलाइजेशन। आफ्टर ये जो मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है ये हमको क्यों पढ़ना जरूरी है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, तो वो हम समझते हैं। सो फॉर एज ए इंजीनियर कुछ भी प्रोडक्ट हमको इन्वेंट करनी है, कुछ नई प्रोडक्ट बनानी है, तो हमको सबसे ज़्यादा कुछ एग्जिस्टिंग मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होगा और कुछ नए मटेरियल है उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाने के लिए। सो देर इज़ अ some innovation, some by using the different tools and techniques and the knowledge। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि ये जो है मेटालिक कंटेनर, एज यूजुअल हम हमारे घर में भी काफ़ी सारे ऐसे मेटालिक कंटेनर अवेलेबल है, उसमें हम स्टोरेज करते हैं। और उसके बाद जो है वही स्टोरेज के लिए इंजीनियर ने डिफरेंट मटेरियल भी निकाल दिए। ये एज आप देख सकते हैं प्लास्टिक के कंटेनर अवेलेबल। अभी इसकी ज़रूरत कब पड़ी, जहाँ पे ये मेटालिक कंटेनर है उसके अंदर जो हम अनाज या कुछ भी हम स्टोरेज करते हैं, लेकिन उसमें क्या रखा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो अंदर जो हमने रखा है वो इजीली विजिबल हो, इसके लिए हमने ये प्लास्टिक कंटेनर पे आ गया। दूसरी एक दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि उसको हम जब वॉश करते हैं तो उसके अंदर एज ए मॉइस्चर कंटेंट या कुछ लिक्विड फॉर्मेशन रह जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सालों के बाद उसके अंदर जो जो वो है क्रैक हो जाती है, उसकी वजह से हम उसका जो लीड जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाते, वो ऐसी भी दिक्कतें आने लगी। तो उसको रिजोल्व करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर को भी यूज़ किया है। अभी ये प्लास्टिक जो है हमने तो इन्वेंट कर दिया है ऐसे इंजीनियर, और कुछ उसके एडवर्स इफेक्ट भी होने लगी, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट पर काफ़ी सारा ऐसा इम्पेक्ट करता है। हम आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट जो बैन कर रही है 15 माइक्रोन से काफ़ी सारे नीचे की प्लास्टिक के हमको यूज़ करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ है कि मेटालिक कंटेनर्स की जगह पे हमने जब प्लास्टिक कंटेनर यूज़ किया है, तो एक जो दिक्कत यहाँ पे आती है कौन सी चीज़ कहाँ पे कौन सी अंदर रखी है, तो वो हम तो देख तो सकते हैं। दूसरी है कि यहाँ पे क्रैक जो होते हैं तो वो यहाँ पे इजीली लीड बंद भी हो जाए, लेकिन आफ्टर सम टाइम और काफ़ी टाइम हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू मेटालिक कंटेनर, उसकी जो स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहती है और वो भी ब्रेक हो जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी यानी वाइटनेस जो है वो भी डल हो जाती है, यानी येलोइश कलर भी उस पर दिख जाता है। सो आफ्टर दैट देयर इज वन इनोवेशन एंड और मेजॉरिटी वी आर यूजिंग दिस ग्लास कंटेनर। यहाँ पे जो है उसको ये ब्रिटल टाइप का मटेरियल है, तो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करते हैं। लीड को जो यहाँ पे दिक्कत आती है वो हम इजीली यहाँ पे आती नहीं, वो ऐसे कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो एक ब्रिटल मटेरियल होने के कारण इसको प्रॉपरली हैंडल विथ केयर करना पड़ता है, अदरवाइज वो क्रैक जो होगी तो ये पार्ट जो है वो वेस्ट है। तो यहाँ पे मटेरियल है फॉर सेम हमको कंटेनर जो है या कुछ भी हमको यूज़ कंटेनर में कुछ स्टोरेज करना है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंटेनर जो है वो अवेलेबल है, आइदर इट इज़ मेटालिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर और ग्लास कंटेनर। ओके, सो द प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर शुड नो हाउ टू सिलेक्ट मटेरियल। हमको कुछ प्रोडक्ट बनानी है उसके पहले हमको
मटेरियल का सिलेक्शन किस तरह से, कौन कौन से पैरामीटर जो है वो हमको कंसिडर करना है कि जो हमारी प्रोडक्ट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। और दूसरी एक जो चीज़ है उसकी डिज़ाइन जो है वो भी एथलेटिक हो, यानी वो कस्टमर या यूज़र वो अट्रैक्ट हो सके। दूसरी है कि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, वरना अगर कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ गई तो कस्टमर वो परचेस नहीं करेंगे। ओके, एज वेल एज उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी काफ़ी लंबे वक्त तक वो चले, वो भी एक देखना चाहिए। और उसकी ड्यूरिंग दिस लाइफ ऑफ स्मान उसकी स्ट्रेंथ भी बरकरार रहनी चाहिए। सो द प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर शुड नो हाउ टू सिलेक्ट मटेरियल which best fit the demand of the design, economic and aesthetic, as well as strength and durability. Also, the designer must understand the property of material. यहाँ पे हम मेटल जो कंसिडर करते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक कंसिडर किया है, यहाँ पे ग्लास, सभी जो ये तीनों डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं। अभी ये सभी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है। ओके, सो और ये सब की डिफरेंट लिमिटेशन भी है। फॉर एग्जांपल जितना लोड एक फॉर एग्जांपल 100 टन का लोड हम देंगे तो कुछ ना जल्दी ये क्रैक यानी फॉर्मेशन यानी डिफॉर्म हो जाएगा, ये स्लाइडली रेजिस्ट कर पाएगा, उसके बाद डिफॉर्म हो जाएगा। और मेटल जो काफ़ी इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा तक वो रेजिस्ट करेगा, उसके बाद डिफॉर्म है। तो सभी मटेरियल की कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होगी। सो हमको एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो उसकी जो डिज़ाइन इकोनॉमिकल एज वेल एज उसका लुक भी अच्छा होगा, और वो मटेरियल की प्रॉपर्टी और उसकी क्या लिमिटेशन है वो भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट इज, तो हमने जो मटेरियल टेक्नोलॉजी यानी सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसकी जो बेसिक है कि टू सिलेक्ट अ मटेरियल फॉर अ गिवन यूज, जो हमारी एप्लीकेशन है उसके मुताबिक हमको मटेरियल का सिलेक्शन करना है ऑन कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट, एक इकोनॉमिकल फैक्टर एंड द परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी, कहाँ तक वो परफॉर्म कर पाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट देते हैं, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसमें प्रोडक्ट की वारंटी देते हैं, ये प्रोडक्ट है करीबन इतने टाइम तक चलेगी। फॉर एग्जांपल लास्ट 5 इयर्स बैक अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी परचेस करते हो तो उसके अंदर वारंटी पीरियड नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंटली आप कुछ भी प्रोडक्ट ऐसे परचेस करते हैं तो आपको शायद 1 मंथ की या 15 दिन की या 6 महीने की या 1 साल की वारंटी पीरियड जो है अब अवेलेबल है। सो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। देन सेकंड इज टू अंडरस्टैंड द लिमिट ऑफ मटेरियल एंड चेंज देयर प्रॉपर्टी विद द यूज। काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल है इनिशियली स्टेज पे उसकी प्रॉपर्टी है जो है वो बरकरार रहती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ यूज़ करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम बाइक नहीं लेते हैं, बाइक के अंदर जो इंजन है उसके अंदर जो पिस्टन है, अगर पिस्टन जो इनिशियल बेस पे अगर है तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन आफ्टर 5 to 6 ईयर या 10 ईयर्स के बाद हम इंजन की बात करते हैं हमारे बाइक की, तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो पिस्टन है कंटिन्यूसली उसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग होके उसकी जो पिस्टनिंग है वो वॉर्न आउट हो जाएगी, यानी वो वॉर्न आउट होने की वजह से वो जो गैपिंग जो क्रिएट होगी तो उसकी वजह से जो वो एफिशिएंसी है वो इतनी नहीं दे पाएंगे। सो टू अंडरस्टैंड द लिमिट ऑफ मटेरियल एंड द चेंज ऑफ देयर प्रॉपर्टी विद द यूज, सो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो आप बाइक लेते हो तो आरटीओ है, तो वो उसकी जो अप्रूवल देता है वो 10 ईयर्स, उसके बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो उसको 5 ईयर्स की या 3 ईयर्स की एक्सटेंशन वारंटी देता है। सो दिस इज द दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड लिमिट ऑफ मटेरियल। then after to be able to create new material that will have some desirable property। कभी कभार आप देखते हैं कि काफ़ी ऐसे मटेरियल है उसको उसके अंदर कुछ एलोइंग एलिमेंट हम ऐड करके उसकी प्रॉपर्टी जो है हम बढ़ा देते हैं। ओके, सो वो पैरामीटर भी हमको ध्यान में रखने हैं। और फोर्थ वन इज टू बी एबल टू यूज मटेरियल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। अगर ये जो प्रोडक्ट है उसका हम किसी दूसरे जगह पे भी अच्छी तरह से या डिफरेंट वे से हम यूटिलाइजेशन कर सके, वो भी हमको देखना जरूरी है। डिफरेंट मटेरियल एंड उसका हम दूसरी जगह पर किस तरह से यूज कर सकते हैं वो भी हमें देखना जरूरी है। हेलो यस सर। सर सर हाँ, थर्ड थर्ड टॉपिक फिर से समझाए ना।
कौन सा? थर्ड, ओके। Third. Yes. टू बी एबल टू क्रिएट न्यू मटेरियल दैट विल हैव सम डिजायरेबल प्रॉपर्टी। काफ़ी ऐसे मटेरियल है जिसके अंदर हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 1 अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपको आगे आएगा वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के अंदर स्पॉट वेल्डिंग आएगा, तो उसके अंदर जो टंगस्टन एंड कॉपर दोनों के मटेरियल का मिला के एक इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। अभी कॉपर की कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और टंगस्टन जो है हायर टेम्परेचर रेजिस्ट कर भी सकता है। फॉर एग्जांपल कॉपर है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू टंगस्टन काफ़ी अच्छी है, तो करंट जो सप्लाई होगा वो कॉपर में से काफ़ी अच्छी तरह से सप्लाई है। लेकिन कॉपर की लिमिटेशन ये है कि वो हायर टेम्परेचर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उस टाइम पे वो मेल्ट हो जाए। और टंगस्टन है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू कॉपर, और लेकिन वो हायर टेम्परेचर रेजिस्ट कर पाएगा। तो ये दोनों मटेरियल है, दोनों की मटेरियल अलग है, कंपोजिशन या उसकी एक एडवांटेज है और लिमिटेशन भी है। अभी ये दोनों मटेरियल का हम कंबाइन यूज करेंगे तभी जाके हमको वेल्डिंग जो करना है तो वो कर सकते हैं। अभी जब वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने की वजह से वो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो टेम्परेचर रेजिस्ट जो करना है तो उसके लिए टंगस्टन भी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी एक जो चीज़ है कि करंट जो है ड्यूरिंग द वेल्डिंग जो है हीट होते हैं, तो वेल्डिंग बंद तो नहीं होना चाहिए और करंट कंटिन्यूसली सप्लाई भी होना चाहिए। तो कंटिन्यूस पावर सप्लाई या करंट का जो मूवमेंट है यानी सर्किट जो कंटिन्यूस रन हो, उसके लिए कॉपर की भी जरूरत है। तो जो मटेरियल है तो इस तरह से वो टंगस्टन और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो डिजायरेबल प्रॉपर्टी हमको ऑब्टेन करनी है वो भी हम कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी दूसरी गियर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है, वहाँ पे भी जो गियर है वो कंटिन्यूसली एक उसके दो गियर जो दोनों के बीच में मैशिंग होता है और वो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन में उसको वियर भी हो जाता है। तो वो वियर ना हो, काफ़ी कभी कभार ऐसे हो कि हायर स्पीड पर रोटेट करते हैं तो अंदर हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से मेटल पे कुछ डार्क स्पॉट ना जनरेट हो, तो कोटिंग लेयर भी करते हैं। सो सेम मटेरियल उसके अंदर कुछ डिफरेंट लेयर ऑफ स्प्रेइंग करके भी हम मटेरियल की डिजायरेबल प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्टेन कर सकते। सो दिस इज द थर्ड फैक्टर। एंड द लास्ट इज टू बी एबल टू यूज मटेरियल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। जो मटेरियल हमने जिसके लिए बनाया है, अगर वो प्रोडक्ट काफ़ी उसका लाइफ स्पान है, उसके बाद अगर हम यूज़ करना छोड़ देते हैं तो उसको कुछ दूसरे प्रोडक्ट के या मटेरियल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उस प्रकार की प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है। यही जो दिक्कत जो हमको आई, वो प्लास्टिक तो हमने इन्वेंट कर दिया, लेकिन प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल या रीयूजेबल करने में काफ़ी सारे दिक्कत है। काफ़ी सारे ऐसे प्लास्टिक गैजेट या डिवाइसेस है तो उसको हम रिसाइकल नहीं कर पाते हैं और वो काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। तो ये समझना जरूर एज अ मटेरियल टेक्नोलॉजी या एज अ इंजीनियर कि अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल है, उसकी क्या एप्लीकेशन है और उसको अगर लाइफ स्पैन ख़त्म होती है तो उसके बाद हम क्या उसका यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी स्टडी दिस मटेरियल टेक्नोलॉजी। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फोर कंपोनेंट ऑफ मटेरियल साइंस। कोई भी पार्ट्स या प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसके बीच एक ब्रिज है। तो फर्स्ट इज कि प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसकी एक आउटपुट है, और वो जो आउटपुट है उसको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इतने साल तक चली है, या ये प्रोडक्ट है आफ्टर नंबर ऑफ आवर्स ये परफॉर्मेंस देती है। सो फर्स्ट पैरामीटर इज परफॉर्मेंस। देन आफ्टर द स्ट्रक्चर, वो परफॉर्मेंस है वो मटेरियल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड रहती है। शायद आप सुमानी सर लेते होंगे तो सुमानी सर ने शायद आपको बताया होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल, लाइक फेस क्यूबिक सेंटर, एफसीसी जो बोलते हैं, बीसीसी जो बोलते हैं, BCC स्ट्रक्चर है, HCB स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्लॉस्पेक स्ट्रक्चर। सो हियर द परफॉर्मेंस इज देयर कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर है, उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी है, तो वो सब भी यहाँ पे आती है। तो देन आफ्टर द थर्ड इज प्रोसेसिंग। अगर मटेरियल जो है वो कौन से मेथड से हम प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट बनाते हैं तो वो कंपोनेंट के लिए हमारे पास कास्टिंग भी अवेलेबल है, मशीनिंग भी अवेलेबल है, वेल्डिंग भी अवेलेबल। तीनों तरीके से हम वो जो आउटपुट रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन कौन सी मेथड जो है
यानी कास्टिंग से वो प्रोडक्ट कितने टाइम में बनेगा और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो कितनी रहेगी, या मशीन से बनाए, मशीनिंग प्रोसेस से बनाए तो क्या कौन सी कितनी रहेगी, या फिर वेल्डिंग से बनाए थे तो कितनी रहेंगी. सो डिफरेंट प्रोसेसिंग आर अवेलेबल. एंड लास्टली इज अ प्रॉपर्टी. सो मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो चेंजेस होती है कि नहीं, कि हम जो प्रोसेस या मेथड यूज करते हैं उसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती रही है. लाइक फॉर जो इनिशियल स्टेज पे है उसकी वजह से वो स्ट्रेंथ उसकी वीक हो रही है, हार्डनेस उसकी कम हो रही है, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई मटेरियल टफ भी हो जाता है. सो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है कि नहीं. सो दीज आर दी 4 इंटर रिलेशन बिटवीन दी मटेरियल साइंस और मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं. तो जैसे अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया है कि what is material, then after the what is technology, how material technology is defining, and then after we start with human civilization from stone age to space or electric age, and किस तरह से हमने डेवलपमेंट देखे फ्रॉम स्टोन एज टू एट प्रेजेंटली डिजिटल एज में. उसके बाद है जो हमारे पास जो मटेरियल है उसका हम एज पर रिक्वायरमेंट हमने किस तरह से इन्वेंशन किया, लाइक मेटालिक टू प्लास्टिक, प्लास्टिक टू ग्लास, तो वो सब एज पर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम यूज़ करते हैं. और उसके बाद जो हमने देखा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ये क्यों हमको पढ़ना ज़रूरी है, और एज ए इंजीनियर हमको क्या क्या पैरामीटर्स या फैक्टर्स हमको कंसिडर करने चाहिए जब भी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं. और ये जो लास्टली जो मैंने बताया है कि ये परफॉर्मेंस जो है या स्ट्रक्चर है या प्रोसेसिंग है या प्रॉपर्टीज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. सो in this today's lecture we have concluded here up to the interrelationship between 4 components of material science. Clear?